हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? टुडे we will learn about some computer science topic. It is the lecture of computer science. So in this topic we will learn about DBMS and tables. Okay. So कितने लोग DBMS के बारे में जानते हैं? What is database management system? So database management system के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी में एक पार्ट है टेबल। टेबल को किस तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उपयोग किया जाता है। टेबल के अलावा कई सारी चीजें हैं, जो क्वेरी है या हाइपरलिंक, OLE, डेटा टेबल की काफी सारी जो डेटा टाइप्स हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे इस पूरे यूनिट है एक तरीके की, इस यूनिट को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे धीरे धीरे। और आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये DBMS, या कह सकते हैं बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट? डेटाबेस मैनेजमेंट। इज ऑडियो वीडियो क्लियर? इज माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू यू? प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं? If not, please respond to me. Okay, good. चलते। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is basically uh, storing of the data into the computer. Okay, just like we think some thoughts, what we think is stored in our mind, as like it, the DBMS system, that is database management system, stores information into the binary level language. Please concentrate on these very minute or very important points, very important words which I am asking here. That database management system is basically a type of storing system of the data into the computer. Okay, so it is stored in a binary form. So binary form is a machine level language which is understandable by the computer system. Okay, so binary form is basically consist of two digits, which is beta 0 and 1. 0 and 1. What do we mean by 0 here? 0, we can say, if we are asking for 0, 0 is basically signifies when the system is off. If the system is off, then it is said to be known as 0. Okay. और 1 means होता है कि if our system works, if our system fluent with any user is on, if the electric circuit or any electric circuit here refers to the machine systems. Okay, either of the hardware is running or not. So we can say if the computer system is in on mode, then we will say it is in the its binary will be 1. Okay, so I hope this will clear. Okay, so 0, 1 are the binary form number. So binary form is basically a machine level language system of representing the symbols, representing the representations, what we are storing depending on that. Okay, so binary is a level, yeah, machine level language which is
which is, we can say, used by the computer system. Okay, there is one another language. If we are asking for it, so we will say that high level language. Okay, so if we are saying that what is high level languages, so high level language is basically a language which is understandable by the user which is operating the computer system. Okay, so high level language is that type of language which is understandable by the user which is operating the computer. Okay, so high level languages is basically the commands can be it can be command. Okay, it can be http. Okay, and it can be consist of many instructions of the computer. So these are high level languages. High level languages must be of different types. That is C level languages, C level, or another is C++. One another is COBOL, Common Business Oriented Language. Okay, Fortran, the first important language, Fortran. Okay, so these are high level languages, which is basically, uh, we can say, which is basically languages of system, and this is user level languages. All these languages are used for different types of purposes, such as program making, such as प्रोग्राम का कोई एक भाग बनाना या पार्ट बनाना, एप्लीकेशंस डिजाइन करने में या किसी प्रोग्राम को रन करने में हम इसका उपयोग करते हैं. ओके, so basically binary level languages consist of 0 and 1, and all the commands is interpreted in this form 0 1 0 1 0 1. Suppose that you are listening that suppose that in different types of robotic films is there could be a computing system which is showing 0 1 0 1 0 1. So all these types of languages or the codes which are represented on the movie, we can say these are a binary form of the number. Okay, so database management system is basically a storing capacity, storing system of the data into the computer. Okay, so how it will be stored? Now the question raises that how it will store, how it will stored, how it will stored? It will be stored in a organized manner. Okay, it will be stored in a organized manner into the computer. So organize करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? हमें सबसे पहले चाहिए टेबल. Okay, what do you mean by a table? Table can be said to as, table is a form of rows and column. Table is a combination of rows and columns. In the rows and columns, there are different type of cells, different types of block, which is called cells. Okay, so rows and columns is the combination. There is a combination of rows and column in a table. Okay, so different types of tables, depending on the quantity of the cells, quantity of the data, we will use different types of tabular form. It can be 2 into 3. Okay, it can be 2 into 3. 2 represent that 2 rows होंगे उसमें और 3 हमारे columns होंगे. समझ आया? चलिए. So table is an organized manner. It is a organized way, या कह सकते हैं form, to store data into the computer, into system. Okay, so it is a table. Okay, so table समझ गए? चलिए, अब टेबल में कई सारी टेबल की जो चीजें हैं, स्टोरेज जो हम करेंगे चीजों का, या
इंस्ट्रक्शंस कमांड, या हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल में जो डेटा एंटर होगा बेटा, उसको हम टेबल में किस तरीके से एंटर करेंगे, समझिएगा बड़े ध्यान से, कि टेबल में जो चीज एंटर करी जाएगी उसके लिए एक डेफिनेट सेल चाहिए, एक डेफिनेट जगह चाहिए, और उस डेफिनेट को हम कहते हैं क्या, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड या पहले से हम डिफाइन कर देंगे कि किस कॉलम में क्या चीज भरनी है। ओके, सो वी कैन से टेबल इज अ फॉर्म ऑफ कॉलम एंड rows. Okay, so these are a combination of tabular form. Okay, so just a minute. टेबल में हमारे होते हैं बेटा रोज और कॉलम। अब इनमें जो चीजें भरी जाएंगी, समझना बड़े ध्यान से, इनमें जो चीजें भरी जाएंगी वो कहां पे भरी जाएंगी, सेल्स में। Just suppose that we are drawing a table here. Okay, suppose that there is 4 columns is there, and there is 5 columns and rows are there. So there are 5 rows and 4 columns. So we can say 5 into 4 की टेबल हमने बनाई है, इसमें हम डेटा इनपुट करेंगे, भरेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, समझ आया जी चीजें। सो टेबल में हम क्या करेंगे, हमने बोला कि प्री डिफाइंड कर देंगे चीजों को। प्री डिफाइंड करने में, प्री डिफाइंड मीन्स क्या होता है, हम पहले से उसको बता देंगे कि किस कॉलम में हमने क्या भरना है। ओके, किस कॉलम में हमने क्या भरना है। ओके, सो सपोज दैट इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 11th, सपोज दैट यू आर स्टडिंग इन क्लास 11th, सो फर्स्ट में हम क्या भरेंगे, आपके पास आपके क्लास में एक यूनिट टेस्ट हुआ है, या कह सकते हैं कि कोई टेस्ट हुआ है, एनुअल टेस्ट ले लें। तो एनुअल टेस्ट में जो नंबर ऑब्टेन करे हैं उसके आधार पे आपकी रैंकिंग होनी है इन द क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक डेटा फॉर द स्टूडेंट। आपको आपके जो टीचर्स होंगे या आपके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए, आपका डेटा चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए हैं। तो उस हिसाब से आपका एक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और उस कलेक्शन में हम करेंगे टेबल का उपयोग। क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे। तो टेबल का यूज कब कर पाएंगे, जब हमें चीजें पता होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट अबाउट देयर मार्क्स, कि कितने नंबर कितने सब्जेक्ट में कितने कितने आपके नंबर आए, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सारी चीजें आपकी पता होंगी। तब हम जाके एक टेबलर फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रख सकते हैं। सो हमारे पास अभी टेबल है और उसमें हमें क्लास 11th का डेटा फीड करना है। क्लास 11th का डेटा फीड करना है, तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले कॉलम में हमने स्टूडेंट के नाम लिखने हैं। ओके, इसमें हमने लिख लिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जब हमने लिख लिया कि कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में पढ़ते हैं, इसके बाद नेम, फिर फादर्स नेम, फिर आपके बाद उसके बाद आएगा बेटा रोल नंबर एंड एज इट इज। रोल नंबर के बाद आपके कितने नंबर आए, तो ऑब्टेन्ड मार्क, एंड लास्ट कॉलम होगा आपका मैक्सिमम मार्क, यानी कि कितने नंबर का पेपर हुआ था, और लास्ट में सबसे लास्ट में होगा परसेंटेज। ओके, सो इतनी सारी चीजें हमने एक टेबलर फॉर्म में अरेंज कर ली हैं, जब हमने यहाँ पे सीरियल नंबर भरा, प्री डिफाइंड, आप समझेंगे प्री डिफाइंड क्या होता है। आपने इन चीजों को डिफाइन कर दिया है, इन कॉलम्स को डिफाइन कर दिया है कि एक में हम सीरियल नंबर भरेंगे, दूसरे वाले में हम नाम भरेंगे, तीसरे वाले में हम भरेंगे फादर्स नेम,
इस तरीके से हमने प्री डिफाइन कर दिए हैं, पहले उसको बता दिया है कि कौन से कॉलम में हमने कौन सी चीजें भरनी है, दैट इज कॉल्ड प्री डिफाइनिंग. We will predefine a column before inputting the data into it. Okay. So serial number में जब हम serial number डालेंगे तो we can not use any other information in this cell. Okay. So ये हमने जो एक ब्लॉक बनाया है, या जितने भी आपको ब्लॉक दिख रहे हैं बेटा, ये क्या होती हैं? ये हमारी सेल्स होती हैं. Okay. These rectangular blocks which is showing on the table is if we are taking one cell, if we are taking one block, that is called cell. Okay. So हर एक सेल में कुछ ना कुछ डेटा आएगा. ठीक. सीरियल नंबर क्या है? सीरियल नंबर में 1 2 3 4 जो भी जितने भी आपके क्लासेस में पढ़ रहे होंगे छात्र, उनके हमने डेटा भरने हैं. ठीक. अब नेम में हम सीरियल नंबर नहीं डाल सकते. आई एम रिपीटिंग दैट वी विल नॉट यूज सीरियल नंबर इंस्टीड ऑफ नेम और नेम इंस्टीड ऑफ सीरियल नंबर. ओके. सो जो भी चीजें आपने प्री डिफाइन कर दी हैं उनमें वही चीज भरेंगे. ठीक. चलिए, इतनी चीज समझ आई. सीरियल नंबर में आपको 1 2 3 4 डालना है. आई एम सेइंग दैट. एंड रोल नंबर में रोल नंबर ही भरेंगे. आप अल्फा न्यूमेरिक अगर न्यूमेरिक वाला अगर कर दिया है तो उसमें आप अल्फाबेट्स नहीं भर सकते. जैसे सीरियल नंबर में आपने 1 2 3 4 5 ये चीज डाल दी हैं, तो वी कैन नॉट इनपुट अ नेम अल्फाबेट इन दिस कॉलम. ओके. इट इज कॉल्ड प्री डिफाइनिंग. इट इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड सबसेट. ओके. सो एक चीज और आती है यहां पर कि रोज और कॉलम्स क्या है. रोज जो आपकी वर्टिकली जो खींची जाएंगी रेखाएं, उनको हम वर्टिकल लाइंस को कहेंगे कॉलम. ओके. इनको हम कहेंगे कॉलम. फिर जो हॉरिजॉन्टल आपकी लाइंस खींची जाएंगी, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, ये सारे, उनको हम कहेंगे बेटा रोज. ओके. उनको हम क्या कहेंगे? रोज कहेंगे. ठीक. समझ आया? चलिए, अब कुछ पढ़ते हैं डेटा टाइप्स. मतलब कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं डेटा के जो हम भर सकते हैं. ठीक. कौन कौन से ऐसे टाइप हैं डेटा के जो हम फीड कर सकते हैं किसी भी टेबल में. टाइप ऑफ डेटा या डेटा टाइप्स. Data types is basically the type of data which we are entering into the table. So first of all, numerical number. Numerical digits भी हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं integer. Okay. It is including with 0 to any natural number. Okay. Any natural number. 0 to any natural number. Okay. So न्यूमेरिकल नंबर, आपके न्यूमेरिकल डेटा को फीड करना है तो आप न्यूमेरिकल नंबर 0 टू जितने भी आपकी डिजिट्स होंगी उतना आप भर सकते हो. ठीक. उसके बाद आता है बेटा अल्फाबेट. अल्फाबेट बेसिकली a type of A to Z alphabets. Okay. A to Z अल्फाबेट्स में भर सकते हैं. अल्फाबेट के स्थान पर आप इसमें अगर आप डिजिट डालोगे तो एक तीसरा टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक टाइप is basically a combination of alphabets and digits. Okay. जैसे A1, B2, C3, that is the type of alphabet plus numeric, that is called alphanumeric. Suppose that we are seeing that in our keyboards there are alphanumeric keys which we are using to input different types of data into the computer. So it is called alphanumeric characters. Okay.
Numeric numbers is the digital characters, digits are there, alphabets are A to Z alphabets, और इसी का एक फॉर्म होता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप। ओके, सो अब बात आती है फोर्थ की। फोर्थ में हम क्या भरेंगे? फोर्थ में आप भरोगे क्या? एलिमेंट। और ये एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बेटा आपके कोई फॉर्मूलाज, ठीक, कोई फॉर्मूलाज या कोई कंडीशन। क्या हो सकती है? कोई फॉर्मूला या कोई कंडीशन हो सकती है जिसको हम बताएंगे कि हम इन चीजों को ऐड कर रहे हैं। इस कंडीशंस में ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। और फॉर्मूलाज में क्या हो सकता है? फॉर्मूलाज में आप एरिया निकालने की बात कर सकते हो, आप किसी भी वीकन से पैरामीटर निकालने की बात कर सकते हो, या इंटीजर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करने के लिए आप फॉर्मूलाज का उपयोग कर सकते हो। ओके, सो different types of we can say formulas and conditions is type of element. Okay, so one another fifth जो type है बेटा, fifth type में आपका आएगा HTTP, या कह सकते हैं hyperlink. Hyperlink is basically हाइपरलिंक बेसिकली कैसी होती है? एक लिंक होती है, एक वेबसाइट होती है, या किसी भी लिंक को आप अटैच कर देते हो किसी भी एक्सेस या एक्सेल के साथ या टेबल के साथ, तो हम उस चीज को एम्बेडेड कर देते हैं। एम्बेड कर देते हैं माने उसमें हम अटैच कर देते हैं, ठीक। हाइपरलिंक मीन्स इट इज अ website, it can be a website or a link which containing a data for a different types of tabular form. ओके, सो हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक एक वेबसाइट होती है जो कंटेन करती है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को, सो इसमें हम उसको लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक में जो आपकी लिमिट होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी होती है? 1 GB होती है बेटा, 1 GB। लेकिन एक दूसरा टाइप होता है, कौन सा? OLE, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ये एडवांस्ड वर्जन है हाइपरलिंक का। OLE एडवांस वर्जन है हाइपरलिंक का, और इस हाइपरलिंक के एडवांस्ड वर्जन में हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? जस्ट डबल ऑफ हाइपरलिंक। ओके, 2 GB डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ हाइपरलिंक। इसमें हम हाइपरलिंक के साथ साथ कई सारे ऐसे फीचर उपयोग कर सकते हैं जो हाइपरलिंक हमें अलाउ नहीं करता। ओके, so this can be different types of user level languages, such suppose that numeric, alphabet, alphanumeric keys. Okay, so these are the types of table. These are the types of data types. Okay, so another type is there, we can say image insertion. Image insertion. इमेज इंसर्शन मींस इमेज में कई सारी टाइप्स आ जाएंगे, जैसे आपकी क्लिप आर्ट, थंबनेल। ओके, सो ये सारे आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, सो वी कैन से डेटा टाइप्स क्या है? डेटा टाइप्स इज द form of the numbers, form of the alphabet, and it is the form of the data we are entering and we are inputting into the table. So यहां पर एक चीज और समझिए कि फॉर्मूला और कंडीशंस को आप कह सकते हो क्या? एक ऐसा प्री एज्यूम्ड फंक्शन, एक फंक्शन है ये, और इस फंक्शन में आपको ये बता दिया जाता है कि पहले से आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर कोई रिजल्ट आपको अगर मिलता है
तो उसको हम मैच करा देते हैं या कंप्यूटर उसको मैच करा देता है विद द गिवन वेराइटीज ऑफ द फॉर्मूला। ओके, एक आपने पहले से ही डिफाइन कर दिया कि जैसे मान लो कि आपने अभी जो टेबल पढ़ा था उस टेबल में आपने पढ़ा था कि मार्किंग अगर हमारी जैसे मान लीजिए कि 50 नंबर का पेपर है और बच्चे को 33 नंबर में पास कराना है। ओके, सो 50 नंबर में आपको बच्चे को 33 नंबर में पास कराना है। 33 नंबर से नीचे अगर नंबर आएंगे तो वो फेल हो जाएगा। ओके, सो यू हैव प्री डिफाइंड दैट कि 33 के बिलो अगर नंबर आएंगे तो आपकी कंडीशंस कौन सी हैं? फेल वाली कंडीशंस है। और अगर इससे ज्यादा नंबर आएंगे तो वो पास में है। ठीक, सो अगर आपने उन मार्किंग को आपने इनपुट कर लिया है अपने डेटाबेस में या कह सकते हैं टेबल में, तो वहां पर आपका जब आप ये चीज करोगे या आप ड्रैग करके इस तरीके से खोलोगे तो वहां पर आपको जितने भी बच्चे जैसे 33 से ऊपर होंगे, 33 से ग्रेटर होंगे, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? पास का ऑप्शन मिल जाएगा। और जितने भी 33 से बिलो होंगे उनको मिलेगा फेल का ऑप्शन। ओके, सो इट इज बेसिकली अ कंडीशन। ऑलराइट, चलिए अब दूसरी चीज आती है बेटा कि हम ये सारी चीजें करेंगे कैसे, ये सारी चीजें हम करना कैसे है हमें। ठीक, कैसे इंसर्ट करेंगे टेबल और टेबल पे काम कैसे करेंगे वो सारी चीजें देखिए। अगर किसी टेबल को हमें इंसर्ट करना है किसी भी प्रोग्राम में, ओके, सो वी विल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू बार ऑप्शन। मेनू बार में काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, उनका हम उपयोग करेंगे और टेबल को इंसर्ट करा देंगे किसी भी प्रोग्राम में। ओके, सो यहां पे हम देखेंगे कि फाइल में जब हम जाएंगे या मेनू बार जो सेकेंड टॉप बार होता है हमारा, सेकेंड टॉप बार जो होता है वो हमारा मेनू बार कहलाता है। और इसी में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनूज होते हैं। फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू। ओके, इंसर्ट मेनू में जब आप जाओगे तो इंसर्ट मेनू में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या खुलेगा बेटा? डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसी में एक ऑप्शन होगा टेबल का। बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले हम गए इसमें किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर लिया, सपोज दैट वी आर वर्किंग विद एमएस एक्सिस, एमएस एक्सिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस 2010 पे हम वर्क कर रहे हैं। ओके, सो इसमें हम पहले इसको ओपन करेंगे, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इट टू ओपन। ओके, आफ्टर opening the dialog box will be displayed, dialog box will be displayed for the program MS Access 2010। तो जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें आप देखोगे एक स्क्रीन, जो स्क्रीन आपके कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर पे डिस्प्ले होगी। ठीक, तो यहां पे आप जब देखोगे तो टाइटल बार में हमें शो होगा MS एक्सिस, MS एक्सिस। बड़े ध्यान से समझिएगा, टाइटल बार, मेनू बार ये सब पूछे जाते हैं। ओके, सो टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट बार विच इज representing the number, representing the program's name, and below this title bar there is the menu bar. Okay, मेनू बार में आपको जो मेनूज दिखेंगी, जो फंक्शंस, जो ऑप्शंस दिखेंगे उनका हम अभी उपयोग करेंगे। मेनू बार जो होता है हमारा सेकंड टॉप बार होता है। ओके, सो हमें जाना है बेटा क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट। सो क्लिक ऑन इंसर्ट पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो हमें एक टेबल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टेबल मिल जाएगी। टेबल का ऑप्शन मिलेगा, उस टेबल के ऑप्शन पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। क्या करना है? लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक जब आप कर दोगे टेबल के ऑप्शन पर तो आपसे ये पूछेगा कि टेबल कितनी कितनी चाहिए या रोल्स और टेबल की कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। उसमें टेबल बन के आएगा और जितनी भी आपको चाहिए होगा या मेजरमेंट कितनी भी चाहिए तो उनको आप क्या बता दोगे? नंबर ऑफ कॉलम्स बता दोगे और नंबर ऑफ रोज बता दोगे। रोज एंड कॉलम्स का जब आप
प्री डिफाइंड कर दोगे यहाँ पे, तो उतनी ही बड़ी टेबल आपके पास आपके प्रोग्राम में फिक्स हो जाएगी। समझ आया? चलिए, ये अभी सिंपल चीजें हैं, इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। समझ आया? रोज एंड कॉलम्स जो हैं हमारे, ये हमें प्री डिफाइन करने पड़ेंगे। हमें पता करना पड़ेगा कि कितने बच्चों के लिए या कितने एम्प्लॉयज के लिए हमें ये चीजें चाहिए। अच्छा, उपयोग किस किस तरीके से करते हैं? टेबल का उपयोग हम कर सकते हैं एम्प्लॉयज की डेटा में फीड करने के लिए। आप जानते हो कि बैंक में आपके जितने भी कस्टमर होते हैं उनका वहां पे डेटा फीड रहता है, इंफॉर्मेशन फीड रहती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? एक्सेल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ओके, नाउ द मॉडर्न विंडोज इज विंडोज 11 and different types of windows have the version of window 10. So window 10 is advanced version of window 7 और 8. okay, so window 10 में जो MS Excel 2010, ओके, या कह सकते हैं कि जो एडवांस वर्जन है विंडो 10 है और उसके एडवांस वर्जन है विंडो 11। सो इसमें अगर आप एक्सेल ओपन करते हो तो आप बैंकिंग में जाते हो, बैंकिंग में आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए हम डेटा स्टोर करके रखते हैं कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं और कहाँ का कितने कितने उसने लोन ले रखे हैं, या और भी जानकारी उसकी जो बैंक के द्वारा संरक्षित होती हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं। समझ आया? जैसे कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, कोई कंपनी है उसके एम्प्लॉयज हैं, उनका हमें डेटा स्टोर करना है और वो किस डिजिग्नेशन में है और कितने साल से किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं और किस डेट पर हमारे कंपनी में आए हैं, या फिर कोई कंपनी छोड़ के चला गया है तो वो किस डेट में छोड़ा है उसने और कितने महीने तक यहाँ पे सर्विस करी है। तो ये सारी चीजें हमारे डेटा के अंतर्गत आती हैं और डेटा हमें फीड करना पड़ता है टेबल में। समझ आया? ऐसे ही स्कूल्स में हम, कॉलेजेस में हम उपयोग करते हैं टेबल्स का। तो इन सारी चीजों के लिए हमें टेबल का उपयोग करना पड़ता है। समझ आया? तो टेबल इंसर्ट करना सीख गए। अब टेबल में हम डेटा इनपुट करेंगे। उस डेटा को इनपुट करने के लिए वी हैव टू बी वेरी वेल नोन फॉर व्हाट इज रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बता दी। अब आती है बात कि कंडीशंस क्या है। किसी भी टेबल में आपको डेटा एंटर करने के लिए कंडीशंस क्या है? सबसे पहले कंडीशन मैंने बताई कि आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जैसे कोई भी काम करने के लिए पहले प्लानिंग करते हो। क्या करते हो? प्लानिंग करते हो कि हमें कहां कहां आज जाना है। जैसे आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आप पहले एक प्लान बना लेते हो कि इस ड्यूरेशन में हम इस जगह जाएंगे। तो ऐसे ही आप क्या करोगे? टेबल में पहले आप प्री डिफाइन कर लोगे, पहले आप स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे, फॉर्मेट तैयार कर लोगे कि हमें क्या क्या भरना है। ओके, सो आप स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद क्या करोगे? जो डेटा है उसको एक वेल मैनर्ड वे में आप भरेंगे। ओके, अरेंज्ड वे में आप इनपुट करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज्ड वे में इनपुट करेंगे। फिर उसको अरेंज कर देंगे। ओके, फिर उसको अरेंज करेंगे इन अ सीक्वेंशियल वे, इन अ सीक्वेंशियल वे। सीक्वेंशियल वे में जब अरेंज हो जाएगा तो एक रिजल्टेंट दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? रिजल्टेंट दिखेगा। और सीक्वेंशियल वे में अरेंज कैसे करेंगे इसका भी एक तरीका है, समझिएगा बड़े ध्यान से। कि सीक्वेंशियल वे में अरेंज करने के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का उपयोग करेंगे। ठीक है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का उपयोग हम करते हैं, तब जाके हमारा रिजल्ट निकलता है। जैसे रिजल्ट का मतलब होता है बेटा कितने बच्चे आपके क्लास में पास हुए हैं, या अगर हम एम्प्लॉय हैं और किसी भी कंपनी में कार्यरत हैं तो वहां पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बचे हैं, कितने छोड़ गए हैं, कितने कितने सैलरी है, या कितना कौन एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। ओके, सो टेबल में किस तरीके से वर्क करना है ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। जय हिंद बेटा।